रोक दो नशे के दरियो में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश के यंग बच्चों को। લોકસભામાં આ શાયરી સાથે ડ્રગ મામલે કોણે રજૂઆત કરી, કયા સાંસદ હતા જેમણે સરકારને ઢંઢોળવી પડી લોકસભામાં? દરેક પક્ષને ઢંઢોળવા પડ્યા કે આપણા દેશને બચાવવા માટે, યુવાધનને બચાવવા માટે આપણે કામ કરવું પડશે। વાત કરશું આપણે વિડીયોમાં કોણ હતા લોકસભાના સાંસદ અને કઈ પ્રકારે તેમને પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું લોકસભામાં ડ્રગ્સ મામલે। નમસ્કાર, હું છું તુષાર બસિયા, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ડ્રગની બધી રાજ્યમાં દેશમાં કેટલી હદે ફેલાયેલી છે તે બાબતથી વાકેફ આપણે સૌ છીએ। મીડિયાના અહેવાલોથી આપણે સતત જાણતા રહ્યા છીએ કે કેટલી મોટી માત્રામાં એજન્સીઓ પોલીસ દ્વારા ડ્રગ ઝડપી પાડવામાં આવે છે, છતાં પણ ડ્રગનું એ સિલસિલો થમવાનું નામ નથી લેતો। આ કઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે ડ્રગની? તો નીચેથી લઈ ઉપર સુધી જે લોકો આપણે ઓળખતા હોવા છતાં પણ આપણને ખબર નથી પડતી કે આ ડ્રગનો વ્યસની છે અથવા તો આ ડ્રગનો વ્યાપારી છે। બની શકે કે આપણા નજીકના કોઈ લોકો પણ ડ્રગના વ્યસની આદતી બની ગયા હોય અને પોતાનું જીવન હોમવા તરફ નીકળી ગયા હોય। પરંતુ આ ચિંતા વ્યક્ત થઈ છે દેશની લોકસભામાં રજૂઆત કરતા નવનીત રાણે કે જેઓ મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીથી અપક્ષ ચૂંટણી લડી અને સાંસદ બન્યા છે અને લોકસભામાં પહોંચ્યા છે। નવનીત રાણાની વાત કરીએ તો નવનીત રાણાએ લોકસભામાં જે શબ્દોથી વાત કરી એ સરાહનીય શબ્દો છે। તેમની વાતમાં દમ હતો, કારણ કે તેમણે કહ્યું કે હવે ડ્રગ્સની બધી એટલી વિકરાળ બની છે, પંજાબ હોય કે દેશના બીજા કોઈ રાજ્ય, ત્યાંની હાલત ખૂબ ખરાબ છે, આપણી યુવા પેઢી બરબાદ થઈ રહી છે। સાથે જ તેમણે વક્તવ્યમાં એ પણ જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ જેલમાં ગયા ત્યારે તેમણે પણ કઈ પ્રકારે લોકોની સાથે મુલાકાત કરી અને મહિલા કેદીઓ કે જેઓ ડ્રગ્સના મામલામાં આવી હતી અને સંકળાઈ અને જેલ સુધી પહોંચી હતી, તેમ શા માટે જેલમાં આવી, શા માટે ડ્રગ્સનો વ્યાપાર કરતી, તેમાં શોખના પણ વિષય હતા, કેટલાકના મજબૂરીના પણ વિષય હતા। તેમણે આ બાબતે પણ સારી વાત કરી કે જેલમાં રહેલા આવા યુવાન યુવતીઓને પણ આપણે બહાર લાવી ફરીથી સમાજ વચ્ચે ઇજ્જત સાથે પ્રસ્થાપિત કરવા પડશે અને આ કામ માટે આપણે એકબીજાના પક્ષ ઉપર ખો નહીં દઈ શકીએ। દરેક પક્ષે સાથે મળી, દરેક સરકારોએ સાથે મળી કામ કરવું પડશે, ડ્રગ્સની બદીને અટકાવવું પડશે। તેમનું આ ભાષણ સાંભળવા જેવું છે, આપણે સાંભળીએ શું બોલ્યા નવનીત રાણા લોકસભામાં, કઈ પ્રકારની તેમની રજૂઆત હતી, જુઓ વિડીયોમાં। बहुत ही सीरियस इशू हमारे देश के आगे के भविष्य मतलब युवा पीढ़ी के लिए ये चर्चा जो परमिशन दी गई है 193 जो हमारे देश में ड्रग्स एब्यूज को लेकर है, मुझे लगता है पंतप्रधान जी का पहले सभी ने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग देश के प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत जो देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके माध्यम से पूरे देश में सेंटर्स के द्वारा जितने भी सेंटर चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से जितना कंट्रोल कर सकें उस पे ड्रग्स पे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके कहीं इन एंड आउट ये पूरे प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा सहभाग जिनका है आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और महिला मंडल और कई एनजीओज जो इसके लिए काम करती हैं कि यंग पीढ़ी जो हमारी इसमें पूरी इन्वॉल्व है उसके लिए उनको किस तरीके से ये ड्रग्स एडिक्ट से बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर जो काम करिए। विशेष करके सर अगर वक्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसके परिणाम घातक हैं। हमारे देश के एनडीपीसी एक्ट 1985 ड्रग्स संबंधित कायदे के कलम 37 द्वारा लिए गए बेल के प्रावधान के और कठोर करना की जरूरत है और कलम 25, 22, 29 के अंतर्गत दिए गए शिक्षा और कठोर करना की आवश्यकता है। सर जिस क्षेत्र से मैं एमपी हूँ, जहाँ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी मुंबई जैसे शहर में जहाँ हम बचपन जहाँ जन्म हुआ वहाँ पे शहरों में अगर देखते हैं तो कॉलेज स्कूल्स के बाहर और हमारे जैसे शहर में जो बहुत छोटा टाउन है अमरावती, वहाँ पर एमडी के केसेस इतने बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई में जहाँ पे पार्टीज होती हैं, सर मेरे पास पूरा डाटा है ये वाला, अगर आप दिखाएंगे इसमें अलग अलग किस्म के ड्रग्स, मेरे कई भाइयों ने इसके नाम लिए हैं, नाम लेते हुए भी एज ए पेरेंट
एज ए लोक प्रतिनिधि देश की अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए आंख के कांटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब ड्रग्स अगर हमारे देश की पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। सभी ने पॉलिटिकल भाषण दिए हैं सर, एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूं, हम चाहते हैं, हम लोगों को चाहना चाहिए ये चीजें कि इस चीज पे रोक कैसी लगेगी, हम मिलकर कैसे काम करेंगे, हम अपनी क्षेत्र की जवाबदारी कैसे लेंगे, हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं। ये पार्टी ने करना चाहिए या वो पार्टी ने करना चाहिए, इसके लिए ये हाउस नहीं है सर। हमारे देश की पीड़ित, हमारे देश के जवान, हमारे देश के बच्चे, उन्हें इस चीज से कैसे बचाया जाए उस पे काम करना चाहिए। मेरे एक कलीग भाई ने बताया कि अमित शाह जी जहां पर भी उनका नाम आए तो वो काफी है, नाम में ही दम है, नाम ही काफी है। जहां पर भी जो सब्जेक्ट पे वो बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वो हाउस में लेके आते हैं, उस पे पूरी ईमानदारी से देश के लोगों का काम करने का काम हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश के काम कर रहे हैं। पर मेरा पीड़ा है कि अगर मैं पंजाब की गल करांगी सर, आई टॉक इन पंजाबी बिकॉज आई बेसिकली बॉर्न बॉट अप इन मुंबई, वर्कड इन साउथ एंड मेरी जनरेशन जो है वो पंजाब से, पंजाब तो आनी आ, पर पंजाब की जिहड़ी पीढ़ी हैगी है, सारे ने क्या अपने बाजू तो कहे, कई लोगों ने इथों क्या, पंजाब की हर गली हर पिंड विच जिस तरीके नाल साडी युवा पीढ़ी अरे आयोडेक्स जाम चे ब्रेड चे ला ला के मुंडे न्याणे उत्थे दे खांदे ने, ओ नशा करते ने, ओ नशा आंदा कित्थों है। गोलियां जिहड़ी बड़े आप ड्रग्स नहीं लै सकते तो गोलियां तो 50 रुपए 100 रुपए की जिहड़ी गोलियां है वो आप ड्रग्स दे मामले च यूज करके सारी यंग पीढ़ी जिहड़ी हैगी है, मेरे भरा ने हुण क्या सारे अब्रॉड चले जांदे ने, जिहड़े अब्रॉड जांदे ने वो तो चल जांदे ने, पर जिहड़े पंजाब रहिंदे ने उन्हां दा की। कोई भी ऐसी फैमिली, हर दूजा घर पंजाब विच यह जिहा एक भी न्याणा छुटिया नहीं है जो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट मेरे होम मिनिस्टर जी नूं रहेगी कि सारिਆਂ ने वक्री वक्री पॉलिटिक्स करते हुए सारियां चीज़ां चखियां ने, पर पाकिस्तान बॉर्डर तो लग्या हुआ साडा पंजाब है। पहले जिहड़ी 5 दरियावां की कहानी पंजाब हुई करती सी, जिहड़ी सुंदर ब्यूटीफुल, जिहड़ी सारे लोग ओदी चर्चा करते से कि एग्रीकल्चर से सारिਆਂ तो बड़े, अज उड़दा पंजाब किवें बन गया, किहदे राज्य च बना, राज्य सरकारां ने की कीता, न्याणिਆਂ दी भविष्य नाल किवें खेलिया, घर तक पिंड तक ये ड्रग्स पहुंचे किवें, इहदे उत्ते रोक लगानी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान तो जिहड़ा भी ड्रग्स साडे देश विच पंजाब विच आ रहा, साडे न्याणिਆਂ नूं सेव कर लो, साडे न्याणिਆਂ नूं पंजाब ते बचाओ। जिवें महाराष्ट्र विच, आज महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से पंजाब में है सर, उसी तरीके से महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, राजस्थान में इस तरीके की जो एक्सपोर्ट की जा रही है, यहां तक पहुंची जा रही है, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं। इसी में सिर्फ बड़े नाम्स नहीं है, बड़े नाम बाहर आते हैं, पर जो गांव में, खेड़ों में, छोटे शहरों में रहते हैं वो परिवारों का क्या, जब उनके ऊपर अत्याचार करते हैं ड्रग्स के नशे में, जिनको होश नहीं रहता है, रोड पे सो जाते हैं, रोड समझता नहीं है, ऐसे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है सर। उसके लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपने डाटा, हमने देखा जो डाटा मेरे हाथ में, देश का 30%, 25% हमारा जो नंबर्स हैं, अगर इतना बड़ा परसेंटेज में अगर ड्रग्स एडिक्ट होता है तो हमारा भविष्य इस देश का कौन से मोड़ पे जा रहा है। उसको कम करने के लिए हम लोगों को सभी को मिलकर, नो पॉलिटिक्स, नो पार्टी, नो लीडर्स, हम सब ने वर्कर बनकर ड्रग्स एक्यूज को, ड्रग्स को बंद करने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पे हम लोगों ने। सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। महाराष्ट्र में अभी मेरे एक भाई ने, यूपी से, उत्तर प्रदेश से लीडर है, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम सर, पर मुझे दुख होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड की, उसके पीछे के कारण आज तक हमारे महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को पता नहीं लगा। सीबीआई ने जो इंक्वायरी लगाई थी महाविकास अघाड़ी में, उन्होंने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, उसका रीजन क्या था, अभी तक हमें पता नहीं लगा। सर मैं आपको एक एक्सपीरियंस मेरा बताती हूँ। हनुमान चालीसा, आई रीड हनुमान चालीसा चैंट इन फ्रंट ऑफ उद्धव ठाकरे जी हाउस। जब मैंने ये लाइन कहा तो मुझे मेरे घर में ही बांधा गया, और उसके बाद जब मुझे जेल 14 दिन हनुमान चालीसा में पठन करूंगी, जब मुझे जेल भेजा गया, तो जेल में जब लेडीज हूं के जेल में मैं बैरिकेड में थी, जब 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खाने के लिए छुट्टी देते थे एज ए क्रिमिनल, तो हम जब उनसे बात करते थे, यंग गर्ल्स, एजुकेटेड गर्ल्स, बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, जब उनसे बात करते थे हम कि आप ये क्यों करते हैं, कई तो शौक के कारण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं बोली आप पैसे कितने कमाते हो, दिन में 50,000 40,000 रुपया, ये रकम उन्होंने उस जेल में उन लड़कियों को, जब हम ब्रेन वॉश उनका करते थे कि दिस इज नॉट गुड, यू आर एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, तब बोलते हैं, तब उनको कोई दूसरी राह नहीं दिखाई जाती। ऐसे बच्चों को भी जेल से निकाल के उनका भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी कहीं ना कहीं जवाबदारी है, क्योंकि वो अनुभव मैंने खुद लिया है।
14 दिन जब मैं वहां थी तो 19 इयर्स, 20 इयर्स, 24 इयर्स, 25 इयर्स, दिस यंग ब्यूटीफुल एजुकेटेड, जब उनके साथ बात करके जब पता लगा कि वो ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स बेचने का काम करते, तब दुख होता है कि इनके हाथ तक वो ड्रग्स पहुंचता कैसे है। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करूंगी सर, प्लीज, हमें आप पर, हमारे गृह मंत्री पे, उनके डिपार्टमेंट पे, उन पे पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे हमारे देश की जनरेशन के लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। माँ के पास ही बच्चा रोता है तो शायद ये आवाज बच्चे की है, वो आवाज अपनी सरकार, अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी। इतना मैं जरूर कहूंगी सर, 4 लाइन है, 4 लाइन बहुत सुंदर है जो हमारे बच्चों के, देश के बच्चों के लिए है। सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पेन है जो मैं लोगों को, मेरे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को देखते हुए फील करती हूँ। रोक दो नशे की दरियाओं में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश के यंग बच्चों को। इतनी विनती मेरे अपने मंत्री से, हमारे गृह मंत्री से और इस पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं सभी से करूंगी। हम सब एक हैं और हमारे भविष्य के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। આપણે સાંભળ્યું કે જ્યારે નવનીત રાણા રજૂઆત કરી હતા ત્યારે લોકસભામાં દરેક પક્ષ પણ સાંભળતો હતો, દરેક પક્ષના સાંસદો આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી સાંભળી રહ્યા હતા। હવે આપણે આશા કરીએ કે જે પ્રકારે નવનીત રાણાએ રજૂઆત કરી, દરેક પક્ષને આજીજી કરતા સ્વરમાં તેમણે કહ્યું કે હવે આપણે કામ કરવું પડશે। દરેક સભ્યોએ પણ, મતલબ સંસદ સભ્યો પોતાના વિસ્તારમાં પણ આ બાબતે કામ કરે। યુવા ધનને કેમ અટકાવવું અને આ ડ્રગ્સની બદલીને કેમ નાશ કરવો, કઈ પ્રકારે આરોપીઓને જેલ ભેગા કરવા, કાયદાને સખતમાં સખત કડક કરી અને આ પ્રકારનો વેપાર અટકાવવો જેથી દેશનું યુવાધન નાશ થતું અટકે। કારણ કે મોટા ભાગનું યુવાધન હવે ડ્રગ્સના રવાડે ચડે તેવી સ્થિતિ આવીને ઊભી છે। આ સ્થિતિ ના નિર્માણ થાય તે પહેલાં જ જો સાંસદો આ પ્રકારની પ્રક્રિયામાં રસ દાખવે તે સરાહનીય છે। આપણે આશા રાખીએ કે દરેક સાંસદો પોતાના વિસ્તારમાં લોકસભામાં સતત આ પ્રશ્નો ઉઠાવી અને સાથે જ દરેક સરકારો, દરેક રાજનેતાઓ અને પક્ષો મળીને આ મામલે કામ કરશે અને આ બધીમાંથી દેશને છોડાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે। આ જ પ્રકારના અહેવાલો અને સમાચારો માટે જોડાયેલા રહેજો નવજીવન ન્યૂઝની આ ચેનલ સાથે। ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।